Good evening. It's Madam actually. Sorry, ma'am. That's okay, Sorry. dear. Welcome everyone. Welcome. Okay. So we'll take 1 or 2 minutes, okay? Then we'll Okay. start the class. Actually, I don't want to interrupt the class, so I'll wait for some 2 minutes more. Then we'll start, okay? Good evening, ma'am. Very good evening, everyone. So I think we should start. Already 2 minutes have passed. So, good evening, everyone. Anirudh, Archie, Kunal, Vihana, Tiasha, Trisha. Okay. Welcome to the class. Okay. Welcome, everyone. Okay. There's someone are coming. Okay. I think we should wait for 1 minute more. There are students who are coming. Yeah. So, welcome, everyone. Welcome to the class. Okay. Anyone knows that is there any option so that people automatically admit in the class? No, ma'am, there is no other option. You have to admit them. Okay, so I have to wait for some seconds more. Okay. I think we should start now. Okay, let's start. So, welcome everyone. This is your political class, and this class is really important. So, I'm just going to share the window and myself, Chinu Thakur. So, hello everyone. Then I'm going to share the window with you. Yes. Okay. The screen is visible or not? Just tell me. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. And the sound, camera, everything Yes, is clear? ma'am. Okay, okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, good. So, shall we start now? So, guys, PSIR. Actually, this is the full form of this subject. PSIR. Can anyone tell me the full form of PSIR? Anyone? No. Okay. PSIR, Political Science and International Relations. Okay. So, this is the full form of that. Yes. So, in this class, we are just going to talk about political science. Okay. After that, if we'll take the another class, we're going for the international relations also, because there are some questions which is related with this also. Okay. So, I hope audio is clear to everyone. Just tell me once. Yes, ma'am. Ma'am. Okay. And is there any language barrier, guys? You understood what I'm telling now? Everything is clear? Yes, madam. Yes. Okay, okay, let's start. Yes, So, ma'am. what is constitution? What is constitution? It's a book which have all the laws. So, constitution in Hindi we called it Samvidhan. And in Samvidhan, this is very easy. Samvidhan means the rule for everyone. All rules are equal to everybody. Okay, Samvidhan, Saman Adhikar. Okay, so our constitution is giving the law for everyone,
and rights to everyone. So in this polity, we have to read each and every point which is connected to constitution and the parts of constitution and which is the organ of constitution, right? So first of all, constitution. The first meeting of constitution which is started in 1946. Do you know that? 1946. And in this meeting, the president was, who was the president? Do you know? Anyone? Rajendra Prasad. Rajendra Prasad was the president of that meeting, the first meeting of constitutions making. And our constitution is effected on 26th Jan 1950. Okay, so how much time it will take to make this constitution? Approximately 4 years. Absolutely. 2 years, 11 months, and 18 days. And trust me, guys, this is also your question. Okay. Sometimes this question also is in examination, some of examination. Madam, one question. Yeah, please. Madam, will it be 2 years or 4 years? 2 years. 2 years, 11 months, 18 days. Okay, madam. Okay. Okay. Yes. So this is the important thing which we have to know about the constitution making. उससे related और भी बहुत points है, but we have to remember these points only, क्योंकि ज़्यादातर question इसी पे बनते हैं. Okay, so let's move on with some important things like constitution have important parts. How many parts constitution have? Parts. अच्छा, I'm writing this. I'll send you the PDF also, but these notes are you have to write with on your hand. क्योंकि हो सकता है PDF में ये notes ना आए. So parts are, there are 25 parts and schedules, 12 schedules. Okay, 25 parts, 12 schedules, and there are some articles also. Is there anyone who can tell me how many articles are there in Constitution? There are 395, but not now. 395 was initial time. जब एकदम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, at that moment we have 395 articles. Articles means laws. ठीक है, इतने पार्ट में लिखा हुआ. But now we have some more articles, and now the numbers are 448. Got it, everyone? Got it, everyone? अरे say yes. मैम एक बार फिर से बोलिए ना. ओके, ठीक है, एक बार फिर से समझो. कॉन्स्टिट्यूशन के जितने पार्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? तो 1946 में बनना स्टार्ट होता है और 1950 में इफेक्टेड होता है. नाउ ऑन द इफेक्टेड डे, हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव, मतलब उसमें कितने पार्ट्स थे, कितने उसमें लॉज लिखे हुए थे? तो देयर वाज 395 आर्टिकल उस समय पे, व्हेन दैट इज द इनिशियल टाइम पीरियड. बट नाउ अगर आज की बात कोई पूछता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स यू हैव in your constitution, so we have to say that is 448. Clear now? हाँ मैम. Yes, ma'am. Very good. अब बात Gate आती बंद है. करो, कोई अचानक से आ जाएगा घर में. रूल नहीं पता है तुमको. राजू पापा घुस जाएंगे. बंद करो घर. हाँ जी. Okay. Now, अच्छा, you have all written this, no? I'm erasing this and I'm writing some more important points like amendments. Do you know what is amendments? What is amendments? Amendments means जब हम law में कुछ changes करते हैं. When we change something in our initial law, पुराने law में कुछ और change करके reissue किया जाता है law को, that called amendments. Got it? So we have 106 amendments till now. Okay? Got it, everyone? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. Now, the meaning of polity. When you are preparing for your examinations, तो वहां पर international जो foreign relations है, that is also connected with your polity. But problem क्या होता है कि हम लोग को हर एक एग्जाम में उतना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है. हर एक एग्जाम में हम लोगों को
पॉलिटी का उतना डिटेल मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ना है. सो इन दिस क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट पॉलिटी. क्या क्या पॉलिटी में आता है, क्या ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इजी है कि नहीं. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस दिस इज रियली इजी सब्जेक्ट. अगर आप इसके पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ते हो, अगर आप अच्छे से समझते हो, तब तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है. सो आई विल जस्ट टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस सब्जेक्ट, हाउ यू कैन राइट योर आंसर, हाउ यू कैन मेक योर नोट्स. एक बात हमेशा याद रखना, वट एवर यू अंडरस्टैंड थ्रू द क्लास यू जस्ट मेक योर ओन नोट्स. ये पीडीएफ आपको मिलता है, बट इस पीडीएफ के अंदर अपने हाथ से भी आप कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी इज, सो पॉलिटी इज द स्टडी बेसिकली, ठीक है. इट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इज पॉलिटिकल सिस्टम. जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, you have to read each and everything. Got it guys, everyone? And what is the political system? बहुत सारे कनेक्शन है इससे रिलेटेड, बट आपको क्या सब कुछ पढ़ना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है. आपके सिलेबस से क्या कनेक्टेड है और क्या क्या पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. नाउ polity is the study of the organization. Okay, why we are going to read about? Because as an सिविल सर्वेंट, अगर आप कोई भी सिविल सर्वेंट बनते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक सम लॉज, अगर आप लॉ मेकिंग बॉडी में हो तो कैसे आप परफॉर्मेंस करोगे. सो ये सारी चीजें जानने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज पॉलिटी एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क. गॉट इट? अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ये तो हमें समझ में आया कि हमें पॉलिटी पढ़ना क्यों, ठीक है, किस लिए पढ़ना पॉलिटिकल सब्जेक्ट. बट अब हम समझना है कि पॉलिटिकल जो पार्ट है वो किस किस से रिलेट करते हैं. सो दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो ऑर्गन्स हैं, लाइक लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव मीन्स हु मेक द लॉ, ठीक है, जो लॉज बनाते हैं लेजिस्लेटिव में आते हैं. अब इफ समवन आस्क मी, मैम लॉज इज ऑलरेडी मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, बट गाइस उसमें जो अमेंडमेंट्स होते आए, चेंजेस होते आए, सम न्यू लॉज आर इनेक्टेड, सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, ठीक है. देन आता है एग्जीक्यूटिव. नाउ व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव्स? हु आर एग्जीक्यूट दोज लॉज, जो कानून बनाते हैं उन्हें कानून को लागू करना है. एंड दीज एग्जीक्यूटिव रेंज आर द ऑफिशियल्स हु just work on those laws. And what is judicial? Judicial is a power like Supreme Court, High Court, subordinate court. These courts are interpret the laws. Interpret मतलब ये आपको सरल भाषा में समझाते हैं. When you entered in Supreme Court or High Court, और कभी भी अगर आप लोगों ने मूवी में देखा हो, तो there is a judge who always saying IPC की धारा तहत आपको इतनी सजा होती है. You heard about that, no? Yes or no? Yes, ma'am. So what this means? They are interpret the law. ठीक है, because we are the common people, we don't know what is the dhara, what is the IP section. Now they are interpreting कि देखो इस धारा के अंतर्गत ये वाला आपको सजा हो सकती है. So these all things are distributed in these 3: legislative, law making, executive, who are performing those laws, and judicial, who are interpret. Got it? Okay. Acha, if anyone have any question, so you can ask now. Yes, ma'am. Madam, that means there are 3 parts in polity, which is legislative, executive, and judicial, right? Right. And legislative is responsible for law making. Executives implement those laws, and judicial are interpret those laws to the public in general language, right? Absolutely, absolutely. एकदम right है. And I hope everyone is understand that. ठीक है, सबको समझ में आया? I am taking this class into a bilingual because you have to understand both these things. किसी भी स्टेट में आप अगर हो ये क्लास देख रहे हो, तो this class will be beneficial for all. ठीक है. अच्छा, आप तीनों ये चीजें समझ में आए. I'm just keeping the simple words. मैं ये क्लास में फिलहाल सिंपल वर्ड्स के साथ आगे बढ़ूंगी, कोई भी टफ वर्ड्स नहीं होगा. ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Our Constitution of India have supreme law. We always saying that law is the top one. Every person has a small in front of our law. ठीक है, the Constitution of India has supreme law and they have the federal structure
and they are providing fundamental rights. अब confusion क्या होता है? पहले supreme law समझते हैं. What do you mean by supreme law? If we have our president, so he is the first citizen of India. ये statement we have read in our class 6. ठीक है? इसका मतलब क्या? उनके लिए कानून नहीं होगा, तो क्या उनके लिए कोई कानून separate होगा? What do you think, guys? Is the law different for the president of India? Yes, ma'am. It's different for the president of India, to be honest. No, we can't say that. We can say that there are some powers which president can use, but उसको भी तो हटाया जा सकता है ना. राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी we have law. If we have law to replace him, it means he is not most powerful. The most powerful is our law, the supreme body, the constitution, right? You got it or not? So what is Yes, our ma'am. constitution? No, madam. I did not understand this supreme law concept. Okay, that's why I'm explaining in these bullet also. Supreme law means they are providing our preamble. What is preamble? They declare India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Means India में कोई भी power है if they are the topmost officials, whether it is a your CGI, whether the president or anyone. But law उनके लिए भी उनको भी follow करना है. They have to follow the law. ये नहीं हो सकता कि he is the first citizen, so he can do anything. Got it or not? So if every Ma'am. person have law, yeah, tell me. Ma'am, the president can't do anything he wants, but to remove him, but to act that law on him, there are certain different procedures now. Yes, I know. He has power to he can forbid someone that if someone get the death imprisonment, he can change that. I know. What are Yes, you ma'am. saying? I know. But there is some provisions also. So Supreme Court can stop that president also. So there Okay, is ma'am. law for him also. ऐसा नहीं है कि कोई टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन का बेटा है एंड ही इज इन द प्रिजन एंड ही इज सेइंग दैट प्लीज डू समथिंग एंड फॉर्मेट माय पनिशमेंट, तो वो उसका कर देगा. नहीं हो सकता. ठीक है. Okay, ma'am. When we'll read about the powers of president na, then you came to know कि what are the powers of the president, how he can use, and how the Supreme Court or the supreme body of law can stop him. ठीक है. There are probationary officers who can ask him why you are doing this. Got it? Okay. Yes, ma'am. So law is the topmost body and constitution is everyone the highest thing. सबके लिए है. Topmost पे constitution है, then president and then other people in our India. Okay? Okay, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Now the fundamental rights which is providing by our constitution, directive principles, fundamental duties, federal structure, parliament, judiciary, amendments, emergency provision, secularism. All these things are given by our constitution and these are really powerful for our livelihood. If we live in a place where we are residing with a different religion और बहुत peacefully, मतलब थोड़ा बहुत तो घर के अंदर 3-4 भाई बहन होते हैं तो उसमें भी झगड़ा हो जाता है. तो अगर उन सब चीजों को मैं साइड रख दूं, सो वी आर लिविंग सिंस अ वेरी ओल्ड टाइम. ठीक है. तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन आर डूइंग देयर वर्क वेल. ओके. तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी तब तो पॉलिटी जो है उसके हिसाब से चलेगा. बट ऐसा नहीं हो जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेकिंग स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस आल्सो फॉर एवरी पोस्ट. और उसका हमें कैसे पता चलता है? व्हेन वी स्टडी अबाउट द पॉलिटी, तो उसमें जो टॉप मोस्ट पावर्स होंगे, वेदर इज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, so they have multiple powers. They have political powers, they have probationary powers, but can we stop them also? Yes, we can. तो उनके लिए भी कानून है. मतलब एक हाथ उनको स्ट्रेंथ देता है तो दूसरा हाथ उनको खींच के भी रखता है कि हर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि सुप्रीम लॉ वी हैव रेड फेडरल स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली? Do you know what is federal structure here? Everyone? What is federal structure basically? Maybe you heard, definitely you heard about center and state. You heard it, no?
center and state. So there is power which is distributed equally between center, state, and the other important parts of the constitution. और उन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है. These all are connected with your polity. Federal structure. India has a federal structure with a union government, which is central government, and state government, each with defined powers and responsibility. Okay. और वो सब mention है. There are powers. For union government, it means central government की powers क्या है, state government उनकी strength क्या है, and the third one is union territories, उनकी भी strength है. ठीक है, ये सारी powers ऐसे equally मतलब दिया गया है. अगर ये powers नहीं दिया जाएगा तो center will become powerful और the state can also become powerful. किसी की भी power को अगर थोड़ा सा ज्यादा कम किया जाएगा तो वही powerful हो जाएगा. So our federal structure is so good कि इतना अच्छा बिल्ड किया गया है कि पावर्स कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आगे बढ़ना है. अगर फिर भी कुछ गड़बड़ होती है, सो दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सन हु इज डूइंग देयर वर्क. दिस इज द प्रॉब्लम विद आर, बिकॉज हम लोग इलेक्शन जब वोटिंग होता है तो ठीक से वोट नहीं करते हैं, एंड वी कांट चूज अ पर्सन द करेक्ट वे बेसिकली. दिस इज नॉट कनेक्टेड विद योर सब्जेक्ट हेयर, बट ठीक है. फेडरल स्ट्रक्चर वेयर द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंटर एंड स्टेट. Now the fundamental rights. Our constitution had provided our almost 6 important fundamental rights. ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में लिखे हैं, कितने होते हैं, what are those, तो that we have read in, yes. What? What? Federal structure. वो हम डिटेल में करेंगे. There is a site. ठीक है, अभी उसके लिए पूरा स्लाइड मैंने बनाया है, एक एक करके चलेंगे. अभी पहले समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को. फंडामेंटल राइट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, कौन से बुक में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट व्हाट इज द आर्टिकल नंबर? सो देयर इज थर्ड आर्टिकल नंबर हैज मेंशन. ठीक है, और आर्टिकल नंबर स्टार्ट विद 12 गोइंग टू 35. ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल इज freedom of speech. Freedom of speech. You can speech anything, but mean कि तुम किसी को भी कुछ भी मतलब जाओ और गालियां बक के आ जाओ, ऐसा नहीं है. Freedom of speech means you can represent your thoughts in front of any supreme body or any judgmental body. So you can speak anything which is connected with the fact. Okay. Number 2, right to against exploitation. This is really important. ठीक है, right to against exploitation. ये बहुत जरूरी था. When we got freedom, no, तो वहाँ बहुत सारे mass clashes था, struggle था between rich and the poor people. So against of exploitation, it's very important. ठीक है. Number 3, anyone can tell me what is number 3? Anyone? There are 6 total. Come on, guys. Third one is cultural and education. You have right for your culture and education. You can study. You can open school. You can open your institute. You can open your organization. This is freedom given by Constitution. And then constitutional reforms also. If you feel that some rules is not good for the humanity, not good for the people, so you can also raise your voice against those, and that will be constitutional remedies. Number 5 will be justice and enforceable. If someone forcibly telling you that this is our power and you have to do this. Suppose if your MLA in your area and he's saying that I'm your MLA and I'm saying you have to do this, so you can raise your voice against him. No, this is not right, and we have fundamental right of justice and enforceable by the court. Okay, and freedom of speech, freedom of religion, freedom of, those are the fundamental rights. अब इसमें plus point क्या है? If someone break your fundamental rights or if someone harms in your fundamental rights, so you can raise voice and you can do FIR, you can take help from the
police also. ठीक है, and court is also providing each and every person to help if someone crash your fundamental rights. ठीक है, कोई भी किसी भी तरह से अपने fundamental rights को का नुकसान पहुंचाता है तो उसका पूरा एक लीगली प्रोसीजर है and you can do that legally procedure. ये फंडामेंटल राइट्स में है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है. Is there any example you can say what is fundamental duties is? बताओ. फंडामेंटल राइट तो हुआ मौलिक अधिकार कि ये मेरा अधिकार है, इसको तो मेरे को मिलना ही है. बट व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज? दीज आर आवर मौलिक कर्तव्य. Voting. What? Voting. Vote. Vote is not a fundamental duties, it is your fundamental right. Fundamental, fundamental duties means if someone saying that there is a Rashtriyan over there and everyone should stand up for the Rashtriyan, or one person is not stand, तो उसके लिए कोई सजा नहीं है. This is your duty. If you want to stand, you can stand for your national anthem. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक है, ऐसा हो गया. नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर सिटीजन. करना चाहिए, बट अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते. देयर इज अ सीट इन मेट्रो फॉर सीनियर सिटीजन एंड फॉर अदर पर्सन, बट अगर आप उनको सीट नहीं दे रहे हो कि नहीं भाई मैं ही बैठूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं किसी सीनियर को सीट नहीं दे सकता, तो वो आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकता. सो दीज आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज की यू हैव टू डू गुड डीड्स फॉर द पीपल. करेक्ट? समझ में आया? Yes, ma'am. अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में. यहाँ होता है कंफ्यूजन. ठीक है, पहले क्या होता था, व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जामिनेशन तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था ही नहीं, मतलब उतना समझाया नहीं जाता था. वी ऑल्सो फोकस ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. बट नाउ द टाइम इज चेंजिंग. बहुत सारे नए एनेक्टमेंट हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं. So they introduced directive principle of state policy. क्यों देना पड़ा? कि स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं एंड स्टेट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बहुत सारी ड्यूटीज दिया, लेकिन पावर्स भी बहुत सारा दे दिया. तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वेयर अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक देयर पीपल गुड एंड रिच. लेकिन रिच तो खैर स्टेट नहीं बनाता, बट ये जरूर ध्यान उसको रखना है कि एवरी पर्सन शुड बी हैप्पी इन देयर स्टेट. उसका कहीं नुकसान नहीं हो रहा हो, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम रेज ना हो रहा हो. तो इसके अगेंस्ट भी जो पीपल है, मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को मिलते हैं. ठीक है, कि आपको ऐसा करना है, तो ये पूरा रिटन है. दिस इज ऑल्सो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर दी प्रिंसिपल्स टू स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, विच इज मेंशन इन पार्ट 4. ठीक है, and the article number is, these are the important articles that I'm going to write here, because sometimes there is a question, directive principle comes under which article. So article number 36 to 51. Okay, and there are some numbers. When you search, all points will be easily found in the website. What is the directive principle of state? So these are the easily traceable, but you have to learn the article number 36 to 51 and the part is 4th. Okay, these are the important things regarding fundamental rights and directive principle of states. Okay, now this is the major we can say flow chart where you have to read each and everything: union government, state government, local government, and then municipality and panchayat. This flow chart will help you to make your notes. अभी आपको क्या करना होगा, when you are doing your work for your paper preparation, so you have to read about union government first. What are the duties? What are the important person concerned with union government? Then state government, then local government. मैं आपको इसका एक रफली और मैं दूंगी इसका, जैसे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, like this. In union government there are executive, legislative and judicial. We have read this in our initial site ना, जब स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पढ़ा था. यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे, यूनियन गवर्नमेंट पढ़ोगे, एक ही बात है. एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? एग्जीक्यूटिव जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है,
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो आपको इन तीनों का पढ़ना होगा। द इम्पोर्टेंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाट एक्स्ट्रा पावर्स ही हैज, ठीक है, एंड व्हाट इज द अमेंडमेंट ही हैज डन, एंड ऑल्सो कि कैसे उसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाने को जो वर्ड है उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, impeachment. This is a perfect term which is used for the president as well as the prime minister also. अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को हटाना है तो देयर इज अ प्रोविजन, वो एक आपका लॉ पास हो जाएगा तो वो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। बट अगर मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है या फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको हटाना है तो मुझे इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट and the vice president, it's important for your polity examination, and the council of ministers. Council of ministers are connected with the PM, ठीक है, not with the president. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कई बार आपका कई एग्जामिनेशंस में मैंने देखा हुआ है, एंड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द हेल्पर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? Are you getting all the points where I'm saying? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Then it's legislative. What are the major organs of legislative? We have read that there are executive, legislative, judicial branches. Now, in legislative, we have parliament. Okay? And parliament have two different powers like Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha is important part of parliament. इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लोकसभा में कितने मेंबर्स, राज्यसभा में कितने मेंबर्स, एंड विच इज द परमानेंट हाउस, वेदर लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस और द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। कैन एनीवन टेल मी विच इज द परमानेंट हाउस? Rajya Absolutely, Rajyasabha is a permanent house. So what this means? Permanent house means their members are always there. The permanent members are there, or they never change their members. Is it mean so? Yes, members are changed, but not total dissolution is occurred. Yes, this is the thing. 2/3 member is changing after 3 years. तो जैसे जैसे 3 साल गुजरते हैं 2/3 members are keep changing, तो वो ऑलरेडी रिफ्रेश्ड मेंबर्स आते रहते हैं। बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, बट लोकसभा कैन बी इजीली डिसॉल्व, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है इजीली। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब अपोजिशंस आपका जो लोकसभा के जो अगेंस्ट में कुछ ऐसे पेपर्स प्रूफ कर दे जहां पर वो कंफर्म कर दे और 10% पीपल जो है सपोर्ट कर देते हैं, तो लोकसभा गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी केस, इट हैपेंड द सेम थिंग। जब और कोई एक मिनिस्टर के अगेंस्ट होगा तो पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो ही गिर जाएगी, और ये बहुत मजेदार चीज है। तो पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको सेपरेट क्लास में करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके, एंड दिस इज योर इंट्रोड्यूसरी क्लास। तो इसमें अगर सब पढ़ाने बैठ जाएंगे ना, लास्ट में आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेसिकली we'll have to make our notes about the Lok Sabha powers and the Rajya Sabha powers, and how many members are there, what is the eligibility criteria to make a member of Rajya Sabha, and some important members are sent by the president in Lok Sabha also, in Rajya Sabha also, but how many, and what are the reason that president can send the person, okay, वो सारी चीजें भी आपका important part है। Now the legislative branch responsible for making laws, और इस पूरा whichever laws are making there, लोकसभा और राज्यसभा जो हाउस है वो इन सारी चीजों को कंडक्ट करते हैं, और वहां पर एक सुप्रीम बॉडी होती है जो स्पीकर होता है, वो सेंटर में बैठा होता है और वो आपको सुन रहा होता है। अच्छा ठीक है, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी है और इधर में जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो अपना कुछ कह रही है और जो बिल पास हो रहे हैं,
तो दे इशू सम बिल्स, फिर उस पे पूरा कंट्रोवर्सी होता है, एंड दैट कंट्रोवर्सी तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कैसे चल रहा है कंट्रोवर्सी, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द जुडिशियल, ठीक है। पॉलिटी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जब उसमें बात करने लगोगे ना, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन टेल अबाउट द वेरियस हाउसेज ऑफ दैट, बट आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना होगा। आपको क्या पढ़ना होगा, जो क्वेश्चंस रिपीटिव आते हैं, whichever examinations you are preparing, you have to focus the PYQ first. PYQ means previous year question paper. आपको पहले सिलेबस अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर को थॉरोली कन्वर्ट करना है अपनी नॉलेज में कि किस तरह का पैटर्न आता है, ओके। देन जुडिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं सेंटर की बात करती हूँ, बिकॉज अभी तो यूनियन गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन गवर्नमेंट, तो देयर आर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो केंद्र से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट, तो वहां पर कौन से हाई कोर्ट होंगे, बता, आई आल्सो टोल्ड दैट हाई कोर्ट्स होंगे वहां पर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाई कोर्ट होंगे और यूनियन गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट होंगे, एंड यू हैव टू रीड अबाउट द जुडिशियल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड द सीजीआई आल्सो। सीजीआई इज अ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है। द पावर ऑफ सीजीआई मींस, what is the full form of CGI? Can anyone? Chief Justice of India. Absolutely. And that's the most important person, CGI, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करूं। Now, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम वैसे ही है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट वी हैव रेड अबाउट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस, एंड इन एग्जीक्यूटिव इन स्टेट गवर्नमेंट देयर आर द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, बट यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी वो स्टेट के हिसाब से होगी। यूनियन गवर्नमेंट में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे पीएम है, पीएम कैन ऑल्सो एंटर इन एनी स्टेट और वहां पर भी अपनी जजमेंट दे सकता है, बट दे कैन ओनली सजेस्ट, वो सजेशन दे सकते हैं, बट परमानेंट जो डिसीजन होगा वो चीफ मिनिस्टर का ही होगा, ठीक है। तो वो किसी की पावर को ले नहीं सकते हैं, बट हाँ ही कैन एडवाइस, और वो सुप्रीम बॉडी हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज में भी ऑल्सो, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, बट वो पॉलिटी के अंडर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव इन यूनियन गवर्नमेंट, विच वी हैव सी यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सीजीआई, इनकी पावर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इम्पीचमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, कैसे होगा वो भी आपको डिस्कस करना होगा। देन एग्जीक्यूटिव में स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द पावर ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। दैट ऑल कंसर्न इन अ executive branch of the state level. Then legislative, every state have their legislative assembly. हर एक स्टेट में भी एक legislative assembly होती है, and they can also enact their personal laws. Personal means the connected with state, ठीक है, वहां पर उससे स्टेट से रिलेटेड पर्टिकुलर वहां लॉज बनते हैं। देन जुडिशियल और स्टेट के जुडिशियल, यस टेल मी। लेजिस्लेटिव मींस, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो आपकी समिति स्टेट में जो कानून बनाता है, अंडरस्टैंड। जैसे वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा सेंटर में था, द सेम सदर्न हाउस वी हैव इन स्टेट आल्सो। हर एक स्टेट में अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, गॉट इट। देन जुडिशियल में जहां सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा, दैट इज कनेक्टेड विद द सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट, तो जुडिशियल हमारा हाई कोर्ट से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इफ द स्टेट इज कनेक्टेड विद द हाई कोर्ट, इट मींस अ कॉमन पर्सन कांट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, बताइए। इफ अ पर्सन लिविंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट एंड इफ ही हैव केस इन हाई कोर्ट, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो सारे जो गवर्नमेंट के बॉडीज है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट क्या किया गया है कि इजीली सब लोग कनेक्ट रहे पॉलिटी से, और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहे कि आपस में इन लोगों का प्रॉब्लम ना हो। बट ऐसे अंदर ही अंदर इनके लूप होल्स हैं कि एक दूसरे के एरिया में जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट में अगर मैं कोई केस हार जाती हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं हार जाती हूँ तो क्या मैं हाई कोर्ट में आऊंगी, बताइए। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, करेक्ट। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वी हैव रेड अबाउट यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेकेंड पार्ट था स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड पार्ट रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में देयर वर विलेज और बहुत सारे विलेजेस थे, तो जो सिस्टम होता था पंचायती सिस्टम होता था इनिशियल मतलब आजादी से पहले। बट व्हेन वी गॉट फ्रीडम नो, तो देयर वर स्टिल विलेजेस, बहुत सारे विलेज थे और वो सारा पैटर्न तुरंत खत्म हो जाता, तो सारा हो सकता है कि विलेज में पूरा सेटअप गड़बड़ाया जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पंचायती राज को एग्जिस्ट रखा और उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दिया। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडी, जो हमारा सिस्टम गांव के आसपास का एरिया संभालता है। अब इसके इंपॉर्टेंट 3 टायर किसे कहा जाता है, 3 टायर इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, एंड दैट इज दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। कैसे, ग्राम पंचायत नंबर 1, पंचायत समिति नंबर 2, जिला परिषद नंबर 3। गॉट इट? तो दिस इज पंचायती राज। इन पंचायती राज वी हैव अर्बन लोकल बॉडी, जैसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट कम्स अंडर दी लोकल बॉडी। म्यूनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेट के नीचे विलेज बहुत सारे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे हैं। तो अगर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एरिया जो स्टेट से बहुत दूर में कहीं पर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, इट हैड डिस्ट्रीब्यूट द पावर इनटू पंचायती राज आल्सो व्हिच इज कनेक्टेड विद द विलेजेस एंड द डिस्ट्रिक्ट्स। तो सारी पावर्स जो है पूरे अच्छे से मिली हुई है सभी को। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, पॉलिटिकल पावर हम लोगों को सबको मालूम नहीं। लाइक देयर आर सो मेनी प्रोविजन फॉर एवरी सिटीजन, बट हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, उनके साथ ये गलत हुआ। समवन सेज दैट I can do this good, but I don't have a right. But प्रोविजन था, वो राइट था आपका, बट आपको मालूम नहीं था, इसलिए आप वो अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए पॉलिटी की जानकारी आप चाहे सब्जेक्ट पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एवरी पर्सन शुड हैव द कॉमन नॉलेज रिलेटेड विद द पॉलिटिकल। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इन दिस क्लास। ठीक है, अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी एक को पावरफुल नहीं रहने देना चाहते। ठीक है, पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है पंचायती राज में भी होता है, बिकॉज पंचायत में क्या होता है, पंचायत मीन्स टोटल 5%। ठीक है, जब बहुत इनिशियल टाइम पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, चोला एम्पायर था, उन्होंने भी हमेशा विलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर ज्यादा फोकस किया था, साउथ में भी। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या हुआ था, देयर वर आल्सो अ न्यूमरस विलेजेस। तो विलेजेस में पंचायत हमेशा होती थी, तो देयर वर टॉप 5% अमंग द विलेज, उनको चॉइस किया जाता था कि हाँ दीज आर द बेस्ट पर्सन एंड दे कैन डू बेटर फॉर द पीपल। तो उसी को अगर पूरा पावर दे दिया जाएगा तो हो सकता है कुछ पीपल हो जो अपने लिए फेवर ढूंढे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट्स एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, बहुत नीचे तक सबको इक्वली राइट मिलना चाहिए इस बात के लिए। यस मिस आर्ची घोष, यस प्लीज आस्क। Yes, ma'am. Actually, I'm so sorry, Chola, yes आर्ची, tell me. ma'am, it's okay. Chola Empire का आप बात कर रहे थे ना? Actually, ma'am, they had the same system as our government, ना? They had a union government and they had many surrounding state governments also, ना? And that Yes, state yes. government, but the main difference was कि उनका state government यूनियन से कंट्रोल होता था, जो हम लोग पे नहीं होता एक्चुअली। अच्छा देखो, चोला में क्या था ना, चोला एम्पायर इज रियली इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो साउथ में एक एरिया में था। इफ Yes, ma'am. चोला बिकेम द सेंटर गवर्नमेंट, अगर वो भी सेंटर गवर्नमेंट होते और वो दिल्ली से अगर पूरा चला रहे होते रूल, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू चोला रूलर कम टू दी साउथ रेगुलरली। तो उसको भी अपने सामंताज रखने पड़ते थे, हाँ, है ना, सामंताज होते थे, उनके भी आगे लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो Yes, कोई ma'am. भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी रूलर हो, किसी ने भी डायरेक्ट जो है वो विलेज पे एडमिनिस्ट्रेशन पे रूल नहीं कर पाया है। जो भी स्ट्रॉन्ग रूलर रहा है उसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है लैंडलॉर्ड्स में, जमींदारों में, और उसके बाद जो एकदम लोकल जो वो होते थे, ग्राम पंचायत वाले होते थे,
उनमें भी, ठीक है। तो चोलास ने भी किया, बट चोलास का सिस्टम इतना पावरफुल था बिकॉज जो रूलर्स थे ना वो अपने कनेक्ट रहते थे गवर्नमेंट के साथ, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती थी उसके साथ कनेक्ट रहते थे बिकॉज छोटा एरिया था, ठीक है। Yes, ma'am. तो हाँ, हमारा डेक्कन का एरिया नीचे की तरफ जो एरिया है, तो चोलास के पास बस वही एरिया था। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ, जैसे अकबर है, अकबर सेंट्रलाइज्ड पावर में था, तो अकबर को पूरा देश चलाना था, तो उन्होंने भी पावर को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। उन्होंने लोकल जो चिफ्तान थे, सामंत थे, उसके बाद उनकी पावर, लेकिन अकबर वाज सो स्ट्रॉन्ग रूलर कि उसने एक डर डाला हुआ था लोगों में। तो वो जो डर है वो इस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डाल के रखता है, It's fine. ठीक है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो पावरफुल, इट डूइंग द सेम स्ट्रॉन्ग थिंग कि अगर तुम गलत करोगे तो देयर इज अ आईपी सेक्शन एंड यू कैन गो टू द जेल। ओके, Yes, ma'am. यस, आई Thank you, होप, ma'am. हाँ प्लीज, इट्स ओके। सो रेस्ट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ना कि क्या चल रहा है, क्लासेस समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही कर रही हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रही हूँ, ये चार्ट आपको समझना है बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट। यू हैव टू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स विच इज कनेक्टेड टू द यूनियन गवर्नमेंट, उसके साथ जो भी एग्जीक्यूटिव्स है उनकी क्या पावर्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कितनी देर रह सकता है, ये सारी चीजें यूनियन गवर्नमेंट में आपको रीड करनी होंगी। Then you have to read about the state government and that is quite similar to union government, but difference तो कुछ ना कुछ होगा, वही हमें पढ़ना होगा because whatever we have studied in our school, अगर आपने 6th से 12th तक NCERT पढ़ा होगा तो that will help in your further examination, but कुछ तो extend होता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 6th क्लास में जो पॉलिटी में पढ़ा है सेम आ जाएगा मेरा सिविल सर्विस एग्जाम में, तो कुछ तो होगा जो मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। तो फर्स्ट क्या करोगे, ये फ्लो चार्ट लोगे, आप इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, बट स्टिल यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस और इसके बेस पर अपने नोट्स बनाओगे। पॉलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको मालूम है क्या मेंशन है, आईपीसी की जितने भी इनेक्टमेंट्स है वो मेंशन है, आपके मौलिक अधिकार कितने हैं दैट इज ऑल्सो ऑन नंबर्स, तो आपको ये सारी चीजें इजीली हो जाती है। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन तैयार करोगे तो ये सारा पैटर्न बहुत इजी होगा। ओके, सो क्लास, अच्छा और एक ये इसको समझना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है। ये 2 फ्लो चार्ट आप लोगों को क्लियर करने होंगे आपका, उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस, बताइए। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। अच्छा, तमोगा रॉय, ओके, यस, तमुग्ना रॉय प्लीज। Madam, I want to ask that is your class lecture or your materials will be provided be sufficient for ICS exam? Yeah, I have to read any textbooks or notes. See dear, this is my first class for polity. If you want some more classes, then I'll make a complete course for polity, and that I involve each and every point which is connected to this subject. फिर आपको कुछ बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा मुझे पढ़ना पड़ेगा। Okay, madam. Got it? Thank you. Yes, Okay. madam. Thank you. So anyone else? Anyone else here? Any question from anyone? तो you can ask now, और नहीं तो बाद में आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं कमेंट, एंड आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो। और बस अपने एग्जाम में जुट जाओ, जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, वर्क हार्ड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइस, एवरीथिंग इज लाइक ऑन द रीच ऑफ योर हैंड। बस आपको उठना है, तैयारी करनी है और अपनी स्ट्रेंथ को पा लेना है। ओके, so guys, thank you so much, we'll meet soon in our next class. For the Thank class. you so much. Thank you, good night everyone, bye bye. Yes, ma'am. Good night, ma'am. Okay, bye bye, good night everyone. Good night. Good night. Thank you, ma'am.